دوستوں امید ہے ایپیسوڈ آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ لانگ ویڈیو کے لیے اپنی سپورٹ دکھاؤ، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو تاکہ میں آپ کے لیے لانگ ایپیسوڈ بناؤں۔ چلتے ہیں آج کی مزیدار ایپیسوڈ کی طرف، جس میں صوفی کو کیسے محفوظ جگہ پر لانے میں گریز خان ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا، جیسے ایمرجنسی ہو۔ دروازے کو یوں پیٹا جانا پر ہم تینوں چوکس ہو گئے۔ جہازیب خان نے مجھے ڈاکٹر خان کو گن پوائنٹ پر لینے کو کہہ کر سپیڈ سے کوڈ ڈائل کرتے ہوئے ڈاکٹر خان کو دھمکی بھی دی کہ اگر تمہاری غلط انفارمیشن کی وجہ سے سریش کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو پھر تم دردناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی دروازہ کھلنا شروع ہوا، جہازیب خان نے بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی پوزیشن لے لی۔ ابھی تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا کہ شدید حملہ کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور اگلے ہی لمحے سریش لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا، جلدی سے دروازہ بند کرنے کو کہنے لگا۔ جہازیب خان نے جلدی سے دروازہ لاک ہونے والا سسٹم آن کر دیا۔ 1 سیکنڈ میں دروازہ آٹومیٹک لاک ہو گیا۔ جہازیب خان اور میں سریش کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگے، وہ صحیح سلامت تھا۔ سریش گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، جہازیب لالا ساری گیم الٹ ہو گئی، جو ڈر تھا وہ ہو گیا۔ جہازیب خان سریش کے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، جلدی بول ہوا کیا ہے، اور تم تو انجیکشن لینے گئے تھے، کیا انجیکشن ملا؟ سریش جلدی سے بولا۔ میں ہاتھ ڈال کر انجیکشن اور سرنجیں نکال کر جہازیب خان کو پکڑاتے ہوئے بولا، یہ تو مل گئے، مگر بنگلے پر حملہ ہو گیا ہے، اب ہم بھاگ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے مجھے کمرے میں داخل ہوتے ہی۔ سریش کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی کہ دروازے پر زوردار حملہ ہوا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ دروازے کا تو پتہ نہیں، ہم چاروں ہوا میں اڑتے ہوئے صوفوں کے اوپر سے جا کر نیچے پڑی لڑکیوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے سامنے پڑی رسیوں پر جا گرے۔ کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ اس کے باوجود میرے ہوش و حواس قائم تھے، کیونکہ مجھے اپنی جان سے عزیز صوفی کی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ حملے کی زد میں وہ معصوم تنہا ہو گئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر صوفی کے پاس پہنچتا کچھ اور کرتا، اس سے پہلے ہی اچانک سامنے سے سروں پر پگڑیاں پہنے 2 نقاب پوش اسلحہ تانے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اگر میں نے گلریز خان لوگوں کا حلیہ پہلے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں ان کو پہچان نہ پاتا۔ اس لیے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جب میری نظر سکھوں کی مخصوص پگڑیوں پر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ گلریز خان اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے، اور سریش ان کی آنے کی خبر دے رہا تھا۔ کیونکہ سریش ہمارے دوسرے ساتھیوں سے واقف نہیں تھا، اس لیے وہ ان کو حملہ آور سمجھ کر اپنی جان بچا کر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ مگر سریش کو کیا پتا تھا کہ وہ کس عقاب کی نظر میں آ گیا ہے، جو اپنا شکار کرنے کے لیے سمندر میں بھی غوطہ لگانے سے گریز نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ گلریز خان اور اس کا ساتھی اندر داخل ہوتے وقت کسی قسم کا ایکشن لیتے، میں چیخ کر کہا، گلریز لالا، حملہ مت کرنا، ہم سب اسی کمرے میں ہیں۔ دھواں کافی تھا، پھر بھی لائٹ کی وجہ سے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گلریز خان کو اپنی موجودگی کی خبر دی، اسی وقت میرے ساتھ ہی جہازیب خان نے پشتوں میں گلریز خان کو ایکشن لینے سے روک دیا۔ جہازیب خان کی آواز سن کر گلریز خان نے پشتوں میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ جہازیب خان اور گلریز خان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پشتوں میں چند باتیں کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ ہمیں یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ آنے والے ہمارے ہی ساتھی ہیں۔ بے شک انہوں نے سریش کا پیچھا کرتے ہوئے اسے مارنے پکڑنے کی غرض سے کمرے کا دروازہ اڑا دیا تھا، مگر اس کے نتیجے میں ان کو اپنے ہی دوست مل گئے۔ گلریز خان اور جمشید کمرے میں تھے، جبکہ کاشان خان ایک سکھ بھائی کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ اندر کی پوزیشن کلیئر ہو گئی تو گلریز خان نے باہر کھڑے کاشان خان کو ساتھی کے ہمراہ اندر آنے کا کہا۔ تینوں ساتھیوں کو صحیح سلامت دیکھ کر میرے ساتھ ساتھ جہازیب اور ماجو کے اندر بھی انرجی آ گئی تھی۔ حالانکہ حملہ ہونے کی وجہ سے ہمیں شدید چوٹیں بھی لگی تھیں، مگر اپنے مزید ساتھیوں کو دیکھ کر ہم ان چوٹوں کو نظر انداز کر کے پرجوش انداز میں ان سے گلے مل کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ گلریز خان نے سکھ ساتھی کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ یہ جگجیت سنگھ ہے اور پنجاب سے ہمارے ساتھ آیا ہے، اور اس کے ساتھ مزید 3 سکھ بھائی بھی ہیں، وہ بھی پنجاب سے ہی ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ ان بھائیوں کی رہنمائی اور مدد کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ جہازیب خان بولا، تم لوگ بنگلے کے مین راستے سے اندر داخل ہوئے پھر کوئی اور خفیہ راستے سے اندر داخل ہوئے ہو؟ گلریز خان بولا، ہم بنگلے کو پیچھے والے راستے سے داخل ہوئے ہیں، مگر وہاں پر گارڈز سے مد مقابلہ ہونے کی صورت میں کافی خون خرابہ ہوا،
मगर शुक्र है हम सब खैरियत से अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। जहांजेब खान बोला, बंगले के अंदर और बाहर की क्या पोजीशन है? गुलरेज खान बोला, फिलहाल तो सब क्लियर है, अगर हम मजीद कुछ देर यहाँ रुके रहे तो मामला खराब हो सकता है, क्योंकि बंगले की मैन रास्ते पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको खबर हो चुकी होगी, इसलिए हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा। बातों के दौरान मुकम्मल तौर पर धुआं छुट गया था। जहांजेब खान, माजो और मैंने सूफी माही और गुलजेब को कंधों पर लाद लिया और जमशेद खान ने डॉक्टर खान को कंधे पर लाद लिया। जमशेद वो लड़का था जो गांव से हमारे साथ आया था, गुलरेज खान की टीम में शामिल था। गुलरेज खान और दूसरे साथियों से सरेश का मुख्तसर तारुफ करवा दिया गया था। गुलरेज खान, सरेश, जगजीत सिंह और काशान खान पोजीशन लेकर हमारे आगे आगे चलने लगे। हम राहदारी में पहुंचे तो कई जगह गार्ड्स की लाशें पड़ी थीं, जिनमें अक्सर के सर को टारगेट किया गया था। राहदारी से होकर सीढ़ियों से नीचे पहुंचे तो सीढ़ियों और नीचे हाल में चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। जगह जगह बुरी हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि गुलरेज खान और बाकी साथी मौला का खेल खेल कर हम तक पहुंचे हैं। नीचे हाल में 3 सिख नौजवान ऑटोमेटिक हथियारों से लैस पोजीशन में खड़े थे। हमें देखते ही उन्होंने तारुफ करवाने की बजाय जल्दी से वहां से निकलने का कहा। खैर, बाहर की जानिब बढ़ने लगे। कुछ ही देर में हम बंगले के बैरूनी रास्ते से बाहर निकलकर गैराज में खड़ी गाड़ियों के पास पहुंचे तो सरेश ने 4 व्हीलर वाली बुलेट प्रूफ 3 गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ हैं, इससे बेहतर हम पर हमला हो सकता है। सरेश की बात से सब ने इत्तेफाक किया। गुलरेज खान अपनी टीम के हमरा जिन गाड़ियों पर आया था वो गाड़ियां वहीं छोड़कर हम सब बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सवार होने लगे। तीनों लड़कियों को एक गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया गया। इस गाड़ी की अगली सीट पर मैं और ड्राइविंग सीट पर जहांजेब खान बैठ गया। बाकी की दोनों गाड़ियों में डॉक्टर खान समेत बाकी सब साथी बैठ गए। सबसे आगे सिख भाई थे, क्योंकि उनको बाहर निकलने का रास्ता का इल्म था, इसलिए उनकी गाड़ी आगे थी। तीनों गाड़ियों के ड्राइवर माहिर अंदाज में गाड़ियां भगाते हुए डॉक्टर खान के बंगले से दूर जा रहे थे। कुछ ही देर में हम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इसी चेक पोस्ट पर पहुंच गए जहां पर हमें आते हुए रोका गया था। मगर मुझे देखकर हैरानगी हुई कि गाड़ियों को देखते ही वहां खड़े फौजियों ने सलवत मारते हुए रास्ता साफ कर दिया। गाड़ियों के शीशे ब्लैक थे, इसलिए बाहर से अंदर बैठे अफराद को देखा नहीं जा सकता था, मगर हमारे जेर इस्तेमाल जो गाड़ियां थीं वो गाड़ियां खुद अपनी एक पहचान रखती थीं। इसकी वजह से चेक पोस्ट वालों ने रोकने की बजाय दौर से ही सलवत मारने के साथ रास्ता साफ कर दिया। वहां से निकलकर हमें आखिरी चेक पोस्ट का भी सामना करना था, जो ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि पहले तो सरेश की वजह से हमने वहां से बचकर यादव नगर गांव का बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, मगर अब सरेश की हालत ऐसी नहीं थी कि वो वहां पर खड़े अफसरान का सामना कर सकता। वैसे भी अभी रात के 10 बजे थी, इसलिए खतरा जाग रहा था। कुछ ही देर में हम यादव नगर के बॉर्डर वाली आखिरी चेक पोस्ट पर पहुंचे। वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट देखकर मुझे थोड़ी तशवीश होने लगी कि जैसे पहली चेक पोस्ट वालों ने गाड़ियों को देखते ही सलवत मार कर रास्ता साफ कर दिया था, वहां पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। बजाय सलवत मारने के उन्होंने गाड़ियों पर असलहा तान कर गाड़ियां साइड पर लगाने का कहा। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, आगे वाली गाड़ी ने अचानक स्पीड पकड़ी और सड़क में खड़े 2 सिक्योरिटी नौजवानों को टुकर मार कर हवा में उड़ाते हुए आगे निकल गई। अगले ही लम्हे दूसरी गाड़ी और फिर तीसरी गाड़ी, जिसको जहांजेब खान ड्राइव कर रहा था। इस दौरान पहली गाड़ी की टुकर से फौजी जवान दूसरी गाड़ी की छत पर गिरे। छत से लड़ेती हुए वो हमारी गाड़ी के टायरों के नीचे आकर खत्म हो गए। तीनों गाड़ियां निहायत महारत से चेक पोस्ट क्रॉस कर चुकी थीं। मुझे गाड़ियों के शीशों पर गोलियां लगने के साथ साथ हल्की हल्की फायरिंग की आवाज भी आ रही थी, मगर अभी तक तीनों गाड़ियों पर किसी किस्म की गोली का असर नहीं हुआ था। बहरहाल पहली गाड़ी की टुकर से उधर उधर हो गए थी, इसलिए बाकी की दोनों गाड़ियों के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं आई थी। मैं समझा शायद हम वहां से बच निकलकर आगे की तरफ रवाना हो गए, मगर आगे वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी को खोलने की तरफ सड़क पर घुमाते हुए वापस की जानिब रुख कर लिया। अगले ही लम्हे एक सरदार गाड़ी की छत से नमूदार हुआ और उसने निकलकर चेक पोस्ट की जानिब अंधाधुंध फायरिंग करने के साथ ड्राइवर ने गाड़ी भी वापस चेक पोस्ट की तरफ बढ़ानी शुरू कर दी। अगले ही लम्हे दूसरी गाड़ी में भी वैसा ही घूमकर पहली गाड़ी से थोड़ा फासला रखकर चेक पोस्ट की तरफ रुख कर लिया।
अगले ही लम्हे गाड़ी की छत से गुलरेज खान निकलकर चेक पोस्ट की जानिब भरपूर हमला करने लगा। जहाजेब खान ने भी गाड़ी को महारत से घुमाकर वापस मुड़ते हुए मुझे कंधा पकड़कर छत से निकलकर चौकी पर हमला करने का कहा। मैं भी फुर्ती से गाड़ी की छत से बाहर निकलकर चौकी की तरफ हमला करने लगा। हमारी तीनों गाड़ियां थोड़े थोड़े फासले पर चलती चेक पोस्ट की जानिब बढ़ती जा रही थीं। दोस्तों, एपिसोड पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से सपोर्ट होती है, जिसको देखते हुए मैं आपके लिए लॉन्ग एपिसोड बनाता हूं। जब मैंने हमला शुरू किया तो तब तक चेक पोस्ट पर खड़े कई जवान जान बहक हो चुके थे। इनमें से कुछ तो सड़क पर पड़े थे, जो बच्चे थे वो भागते हुए जगह तलाश कर रहे थे, मगर हमने उनको छुपने की जगह तक पहुंचने की मोहलत ही नहीं दी। चंद लम्हों में हमने बच्चे कच्चे फौजियों को उड़ा दिया। तकरीबन वहां 20 से 25 लोग थे। इस पर बस नहीं हुई। आगे वाली दोनों गाड़ियों से हमारे 5 साथी निकलकर चेक पोस्ट की तरफ बढ़ने लगे और वक्ता फौकता हमला करते हुए बड़ी दीदा दिलेरी के साथ चेक पोस्ट के कमरों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में पांचों चेक पोस्ट का चक्कर काट कर भागते हुए वापस आए और अपनी गाड़ियों में सवार होने लगे। इसी वक्त जो सीन मैं अपनी आंखों से देख रहा था वो मुझे सबसे बेहतरीन इंग्लिश फिल्मों की शूटिंग का सीन लग रहा था। मैं अभी तक इस मामले को समझ नहीं सका था कि इस चेक पोस्ट वालों ने हमें रोकने की कोशिश क्यों की थी और सबसे आगे वाली गाड़ियों में मौजूद सिख साथियों ने वहां से बच निकलने के बावजूद फिर से पलट कर उन पर वार क्यों किया था। जब हम वहां से निकलने लगे तो जहाजेब खान ने गाड़ी सीधी करते हुए मेरी पेंट खींचकर मुझे नीचे बैठने का इशारा किया। मैं गाड़ी की छत के सुराख को बंद करके नीचे सीट पर बैठते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, लाला मुझे खुद नहीं समझ आई। जहां तक मुझे लगा इस चेक पोस्ट पर शायद इसलिए गाड़ी रोकने का कहा गया था कि उन गाड़ियों का इस तरफ दाखला मशकूक समझा गया था, अब फिर पीछे से उनको काल वगैरह आ गई होगी। जो भी था, मगर एक बात जरूर थी, अगर हम गाड़ियां रोककर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते तो हमारी बदतर खस्ता हालत देखकर इसी वक्त उन्होंने हमें घेर लिया होता। इसलिए सब आगे वाली गाड़ी में सवार साथियों ने फौरन एक्शन लेने का सोचा। मैं कहते हुए बोला, जब हम वहां से निकल कर आए थे फिर वापस पलट कर खतरा लेने की क्या जरूरत थी। जहाजेब खान मुस्करा कर बोला, कमाल करते हो लाला। एक बात मेरी याद रखो, दुश्मन को कभी जख्मी हालत में मत छोड़ो। जब तक इसको नाबूद ना कर दो तब तक अगला कदम मत बढ़ाओ, वरना वो मौका मिलते ही तुम्हारे पीछे वार करेगा। जहाजेब खान की बात सुनकर मैं समझ गया कि पूरी चेक पोस्ट को उड़ाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो कहीं काल चलाकर आगे का रास्ता मुश्किल ना बना देते, अब फिर पीछा करके मुश्किलात पैदा कर सकते। इसी तरह चेक पोस्ट को उड़ाने से हमें थोड़ा वक्त मिल जाना था और इस वक्त का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में हम मौका वारदात से कई किलोमीटर दूर निकल सकते थे। शादी नगर से निकलकर जब हम शजनाम नगर पहुंचे तो वहां से आगे बढ़ने की बजाय सबसे आगे वाली गाड़ी ने दाएं जानिब छूटी सड़क की तरफ गाड़ी मोड़ ली। इसी दौरान मैंने एक और चीज नोट की कि वहां आते जाते लोग गाड़ियों को देखकर हैरानगी का इजहार कर रहे थे, जैसे उन्होंने पहली दफा ऐसी गाड़ियां देखी थीं। हम तकरीबन 3 घंटे का सफर छूटी कच्ची सोटी फूटी सड़क पर करते रहे, जो मुख्तलिफ गांव से होती हुई आगे जा रही थी। अभी तक मुझे दूर दूर तक शहरी आबादी नजर नहीं आई। रात का धुंधल का बच चुका था, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा था। मजीद कुछ देर बाद हम मैन जीटी रोड पर पहुंचे तो वहां पर कोस्टर नुमा बस खड़ी नजर आई। आगे वाली गाड़ी ने इस बस के करीब गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी होते ही बाकी की दोनों गाड़ियों ने ब्रेक लगा दी। पहली गाड़ी में सवार सरदार बाहर निकलकर इशारे से बाहर आने का कहने लगा। हम बाहर निकले तो उन्होंने हमें 5 मिनट के अंदर अंदर बस में सवार होने का कहा। एक बार फिर से तीनों लड़कियों को गाड़ियों से निकालकर बस में सवार किया गया। कुछ देर में हम बस में सवार हो गए। बस का ड्राइवर भी सरदार था। हम अभी कुछ दूर गए थे कि जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने खिड़की से बाहर सर निकालकर पीछे देखा तो जिन गाड़ियों से हम निकल कर आए थे तीनों गाड़ियां आग के शोलों में लिपटी हुई थीं। बस ड्राइवर काफी स्पीड से बस भगाते हुए जा रहा था। 1-1.5 घंटे बाद ड्राइवर ने जीटी रोड से बस को बाईं जानिब छूटी सी सड़क की तरफ मोड़ दिया। अभी तक हम सब खामोश थे कि किसी ने भी मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बात करने की कोशिश नहीं की। जीटी रोड से बस नीचे उतरने के कुछ ही देर बाद सरदारों ने खुशी से अपने मजहबी नारे लगाने शुरू कर दिए, जो बोले, सोनेहाल,
इस तरह के नारे वो पुरजोश अंदाज में लगा रहे थे जैसे जंग फतह करके वापस लूट रहे हों, और हकीकत में भी ये जंग से कम नहीं था। मैं सबसे पीछे 4 सीटों वाली लाइन पर चौथे नंबर पर अपनी सूफी की कमर में बाजू डालकर उसके सर को अपने कंधे पर टिकाए बैठा हुआ था, जबकि बाकी की दोनों सीटों पर माही और गुलजेब एक दूसरे के ऊपर बेहोशी की हालत में नींद दराज थीं। आगे वाली सीटों पर बाकी के साथी बैठे एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार कर रहे थे। मालूम करने पर पता चला कि हम पंजाब की सरहद में दाखिल हो गए हैं और बहुत जल्द हम चंडीगढ़ शहर से दूर एक पसमानदा इलाके में पहुंच जाएंगे जहां हम सब महफूज होंगे। और ये कोस्टर नुमा बस भी सरदारों की प्लानिंग के मुताबिक पहले से यहां मौजूद थी। जहाजेब खान से मालूमात लेकर खुशी से सूफी का माथा चूमने लगा जैसे हम अपने घर पहुंच चुके हों। माथे पर होंठ रखते हुए अगले ही लम्हे मेरी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकल आए और मैं सूफी के माथे पर होंठ ले जाने की बजाय अपने खालिक को याद करके इसका शुक्र अदा करने लगा। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद हम मतलूबा जगह पहुंच गए। दौरान सफ़र रात का अंधेरा होने की वजह से मुझे बाहर की लोकेशन का तो मालूम नहीं हो सका, वैसे भी मेरी आगोश में सूफी थी, मेरी तवज्जो उसकी तरफ थी। गाड़ी हचकोलों से इतना ज़रूर मालूम हो गया था कि हम कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। गाड़ी रुकने के बाद सब लोग गाड़ी से उतरने लगे। मैं भी सूफी को उठाकर गाड़ी से बाहर आया तो बाहर का माहौल देखकर मुझे अपने बचपन का गांव याद आ गया। कच्ची मिट्टी की दीवार से 4 दीवारी वाली हवेली बता रही थी कि हम शहर से काफी दूर किसी गांव में आए हैं, जहां अब भी ट्यूब लाइट की जगह चांद की रोशनी 15-20 साल पहले का मंजर पेश कर रही थी। हवेली का अहाता काफी खुला था, जबकि सामने यूं शक्ल में काफी सारे कच्चे कमरे और आगे उनके बरामदे दिखाई दे रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट्स बंद करके 2 टार्च लाइट्स जला दी गई थीं, जिनकी तेज रोशनी की वजह से हवेली में बने हुए कमरों का नक्शा नुमायां तौर पर दिखाई देने लग गया था। इसी दौरान एक सिख भाई ने लड़कियों को सामने वाले कमरे में ले जाने का कहा। मैं जहाजेब और माजो लड़कियों को उठाए हुए सरदार के पीछे चल पड़े। कमरा काफी कुशादा था, नीचे चटाई बिछी थी। तीनों लड़कियों को चटाइयों पर लुटाने के बाद मैंने उजलत में जहाजेब खान से इंजेक्शन के बारे में पूछा। जहाजेब खान ने जेब टटोलते हुए इंजेक्शन और सरिंजें निकाली तो इंजेक्शन देखकर मैंने शुक्र अदा किया कि इंजेक्शन बच गए, क्योंकि हमले के दौरान इंजेक्शन जहाजेब खान के हाथ में पकड़े हुए थे और इसी दौरान जोरदार हमला हो गया था। जहाजेब खान की हिम्मत पर सलाम करने को दिल कर रहा था कि इसने ऐसी सूरत-ए-हाल में भी इंजेक्शन हाथ से गिरने नहीं दिए। इसी दौरान सरदार बिलवेद सिंह, जो अब तक गाइड कर रहा था, वो बड़ी सी चादर ले आया और तीनों लड़कियों के जिस्मों को चादर से ढांपने का कहा। मैं और जहाजेब खान ने चादर पकड़कर चादर को फैलाकर तीनों लड़कियों को ऊपर गर्दन तक चादर डाल दी। इतने में सरेश कमरे में दाखिल हुआ तो जहाजेब खान ने इसे कहा, तुम्हें इंजेक्शन लगाने के बारे में इल्म है कि उनकी मिकदार कितनी लगानी है? सरेश ने आगे बढ़कर जहाजेब खान को निशाना बनाते हुए बोला, मुझे इसकी मिकदार का इल्म है, मगर मुझे इंजेक्शन लगाने का तजर्बा नहीं है। जहाजेब खान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे दोनों चीजों का तजर्बा है, बस मिकदार कन्फर्म करने के लिए मैंने तुम्हारी राय ली थी। तुम्हारी राय जानकर मुझे तसल्ली हो गई है कि वाकई इतनी मिकदार में इंजेक्शन दिया जाना है। जहाजेब खान ने बड़ी महारत से इंजेक्शन तोड़कर सरिंज में इंजेक्शन भरा और सूफी की गर्दन पर मखसूस जगह पर वैन में इंजेक्शन लगा दिया। मुझे ये जानकर हैरानगी के साथ खुशी भी हो रही थी कि जहाजेब खान ने इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग भी हासिल की हुई थी। गर्दन जैसी हसास जगह पर वैन में इंजेक्शन लगाना कोई आसान काम नहीं था। कुछ ही देर में तीनों लड़कियों को इंजेक्शन लगाने का काम मुकम्मल करके हम उनकी होश में आने का इंतजार करने लगे। कमरे में हम 3 लोग मौजूद थे, जहाजेब खान, सरेश और मैं। बाकी के दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। डॉक्टर खान को भी वो लोग अपने साथ ही दूसरे कमरे में ले गए थे। मुझे इस वक्त सूफी के होश में आने की फिक्र खाए जा रही थी, इसलिए मैंने किसी मौजू पर भी बात नहीं की और ना ही मेरा ध्यान इस तरफ गया था। मैं बेचैनी से कभी कमरे में टहलने लग जाता, कभी बार बार सूफी के पास जाकर उसके पेशानी को देखकर उसकी नीली आसमान जैसी नीली बंद आंखों को देखता, जिनको लंबी पलकों के सिया बादलों ने घेर रखा था। मेरे लिए एक सेकंड तो क्या, मेरे लिए हर अगली सांस लेना दुश्वार हो रही थी। दिल में इज़्तिराब था, दिमाग में कई तरह के वसवसे थे, ख्यालों में हजारों किस्म की किया से किया हो गईं। 10-15 मिनट इसी कैफियत में गुजर गए, मगर अभी तक उनके जिस्मों में हल्की सी भी लर्जिश पैदा नहीं हुई थी।
मुझ से सब्र ना रहा। मैं जहांजेब खान के पास जाकर बेसब्री से बोला, लाला उनको अभी तक होश क्यों नहीं आया? कहीं डॉक्टर लाल ने झूठ बोलकर गलत इंजेक्शन तो नहीं बता दिया था? जहांजेब खान मेरा कंधा दबाते हुए बोला, लाले की जान थोड़ा वेट कर लो। ऐसी सिचुएशन में इंजेक्शन का असर होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं उजलत में बोला, मगर लाला फिर भी कितनी देर तो हो गई है। उनको होश आना तो दूर की बात, अभी तक उनके जिस्म में हल्की सी हरकत भी पैदा नहीं हुई। बात करते वक्त मेरा लहजा गुल्लुगीर हो गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं चीख चीख कर अपनी सूफी को होश में लाने की कोशिश करूं। जहांजेब खान मेरे रुखसारों पर हाथ रखकर बोला, अरे लाले की जान, क्या हो गया है? दिल क्यों छोटा कर रहा है? मर्द बिन क्यों बच्चों की तरह आंसू बहा रहा है? अब तुम पहले वाले यासिर नहीं रहे जो यूं हिम्मत हार रहे हो। वैसे भी अब तुम्हें खुश होना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें कामयाबी दी है और हम अपने मिशन में कामयाब होकर सब साथी सही सलामत वापस महफूज ठिकाने पर आ गए हैं। जहांजेब खान ने तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बात की थी, मगर उसकी बात सुनकर मुझे ना जाने क्या हुआ, मैं इतना कमजोर कैसे पड़ गया। जहांजेब खान की बात पूरी होते ही मैं फूट फूट कर रोने लग गया। जहांजेब खान ने तड़प कर मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं जहांजेब खान के कंधे में चेहरा छुपाए रोते हुए एक ही बात किए जा रहा था, लाला मुझे ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए जिसके मिलने के बावजूद मेरी सूफी को होश नहीं आ रहा। मेरी कामयाबी मेरी जान में जान आने पर होगी। लाला मेरी सूफी को होश क्यों नहीं आ रहा? मुझे इसकी हालत देखी नहीं जा रही। इसे कब होश आएगा? तुम ही कुछ करो ना कि मेरी सूफी को होश आ जाए। मैं तड़प रहा था, बुलबुला रहा था, रो रहा था, फरियादें कर रहा था। इसी दौरान मेरे कानों में आवाज पड़ी, यासिर, यासिर। आवाज सुनकर मैं कैसे ना चुप होता, कैसे ना तड़प कर कंधे से चेहरा हटाकर आवाज की समत देखता, कैसे ना दीवानों की तरह ठोकर खाते हुए भागकर अपनी सूफी के पास पहुंचता। सूफी की आंखें बंद थीं, इसके होंठ मेरे नाम को मंतर की तरह पड़ रहे थे। मैं घुटनों के बिल गिरते हुए सूफी के चेहरे के करीब चेहरा करके इसकी गाल को सहलाते हुए रंधाई आवाज में बोला, जी यासिर की जान, जी मेरी जान, आंखें खोलो। देखो तुम्हारा बदनसीब यासिर तुम्हारे सामने है। आंखें खोलो मेरी जान, देखो मैं हूं यासिर। सूफी की पलकों की बिछी चादर में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। इसकी हल्की सी लर्जिश को देखकर मेरे दिल की धड़कन हद से तजावुज करने लगी। मैं बेकरारी से कामती होंठों के साथ रंधाई आवाज में गिड़गिड़ाया, हाँ हाँ खोलो आंखें, हाँ शाबाश खोलो। सिया लंबी पलकों ने हल्की सी अंगड़ाई ली। खुशी की नाकाबिल बर्दाश्त शिद्दत से मेरी जान हल्क में आने लगी, जैसे कारून के खजाने समेत सारे जहान के खजाने का मुंह सिर्फ मेरे लिए खिलने लगा हो। मैं खुशी और गम में तड़पते हुए इकलाता जा रहा था। हाँ बोलो शाबाश, देखो कौन है तुम्हारे सामने। वो अंगड़ाई लेकर पलकों ने लरसते हुए ऊपर उठना शुरू कर दिया। मैं खुशी से पिघल होते हुए एक नज़र जहांजेब की तरफ डालकर फिर से उन पलकों के सिया बादलों के छटने से खुलते हुए आसमान की रंगीनी को देखने का बेताबी से इंतजार करने लगा। जहांजेब खान और सरेश भीगी आंखों से मुझे देख रहे थे और मैं सूफी के नरम बालों को हाथों में लेकर उसके चेहरे का दीदार करते हुए ऐसे ही इससे बातें कर रहा था जैसे 4 साल की बच्ची नन्ही गुड़िया से लाड प्यार करती है। हाँ, मेरी वो गुड़िया थी जिसके एक हो जाने का मतलब, जिससे बिछड़ जाने का मतलब, जिससे जुदा होने का मतलब सिर्फ मौत ही। उधर सूफी को होश आ रहा था, उधर मेरे जिस्म में रूह का नुज़ूल हो रहा था। उधर सूफी की सांसों में रवानी आ रही थी और उधर मेरे सीने में दिल धड़कना सीख रहा था। उधर सूफी तसलसल से एक नाम ले रही थी, उधर मैं खामोशी से निढाल होते हुए लरसते हुए इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। जैसे ही सूफी की आंखों से सिया पलकों के बादल छटे, जैसे ही उन आंखों की रंगीनी नुमाया हुई, जैसे बिन बादलों के नीले आसमान से बारिश की बूंदें बरसना शुरू हुईं, जैसे ही इंजील सी उन आंखों से मेरी प्यासी नजरें टकराईं, इंजील सी इन आंखों को देखकर खुशी से कपकपाते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर इस बात में सर हिलाते हकलाते हुए बोला, हाँ मैं तुम्हारा यासिर, हाँ मैं आ गया हूँ। उधर सूफी का निचला होंठ बाहर निकला, जैसे सूरज की पहली किरण फूट कर सूरज निकलने का ऐलान करती है, इसी तरह सूफी के निचले होंठ ने बाहर निकलकर सूफी के होश में आने का ऐलान कर दिया। मैं कपकपाते हाथों के साथ सूफी के गालों को पकड़कर इसे यकीन दिलाने लगा कि जो तुम देख रही हो वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। फिर भी सूफी नाकाबिल यकीन अंदाज में मुझे देखते हुए खुशी कम और गम के बोझ तले ज्यादा दबे हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस हकीकत की तसल्ली करने के लिए मेरे बाजू को पकड़कर बाजू को
टटोलते हुए खुद को यकीन दिला रही थी कि वाकई होश में आने के बाद इसकी आंखें जो मंजर देख रही हैं, इस महबूब का नाम बेहोशी की हालत में ले रही थी, क्या वो चेहरा वाकई इसी महबूब का है? मेरे बाजुओं को टटोलते टटोलते सूफी के कपकपाते हाथ मेरे कंधों तक आए, कंधों से सर के ऊपर मेरे रुखसारों पर। सूफी के होंठों पर कपकपाहट तारी थी, आंखों से आंसुओं के अनमोल मोती रुखसारों पर बहते हुए थोड़ी की तरह रवां थे। मेरे रुखसारों को दोनों हाथों में लेकर सूफी की कपकपाती हुई आवाज मेरे कानों को सुनाई दी, यासिर मेरी जान तुम आ गए। मेरी हालत भी इससे जुदा न थी। जुदा होती थी कैसे? सदियों से बिछड़े दो दीवाने मिल रहे थे, दो प्रेमी मिल रहे थे, दो रूहों का मिलाप हो रहा था। मैं भी इसी पोजीशन में बोला, हाँ यासिर की जान, तुम्हारा यासिर तुम्हें लेने आ गया है। सूफी ने रुखसारों को सहलाते हुए दुरुस्तगी निगाहों से मेरे चेहरे को देखते हुए गुल्लुगीर लहजे में बोली, कहाँ थे तुम? इतनी देर क्यों की? मैं तड़प कर बोला, क्या करता जान, उन जालिमों तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा, मगर मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन था कि मैं अपनी जान को इन जालिमों के शिकंजे से आज़ाद करवाने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। देखो आज मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे पहलू में हूं, अब किस में हिम्मत है जो तुम्हें मुझसे जुदा कर सके? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही सूफी ने पुरजोश अंदाज में मेरे रुखसारों को मजबूती से पकड़ा और मेरा चेहरा ऊपर उठाकर वालिहाना अंदाज में मेरे चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। सूफी रोते हुए खुशी का इजहार करते हुए मेरे चेहरे को वालिहाना अंदाज में चूमी जा रही थी। मेरा यासिर आ गया, सच्ची मेरा यासिर आ गया, हाँ मेरा यासिर आ गया, ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली, मेरा यासिर मुझे लेने आ गया, लो यू जान। मैं भी रोते हुए सूफी की कमर के नीचे बाजू डालकर इसे सहारा देकर ऊपर उठाकर अपने करीब करते हुए इसके चेहरे को वालिहाना अंदाज में चूमते हुए कहे जा रहा था, हाँ हाँ मेरी जान में आ गया हूं। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम बनी ही सिर्फ मेरे लिए हो, फिर कौन तुम्हें मुझसे जुदा कर सकता है? सूफी ने ऊपर होते ही मेरे रुखसारों को छोड़कर उजलत में मेरे बाजू को नीचे से हाथ गुजार कर मेरी कमर के गिर्द बाजू डाल लिए। सूफी के बाजुओं की गिरफ्त में आते ही सदियों की जुदाई के जख्मों पर आंसुओं की मरहम लगने लगी। दोस्तों उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगली एपिसोड को चैनल पर देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि अगली एपिसोड आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।